آج ہم قوم میں دیکھ رہے ہیں جو بیماری پھیلی. پہلے غور سے سمجھنا کہ بیماری ہے کہ عذاب. بات سمجھ رہے تم لوگ؟ یہ بیماری ہے کہ یہ عذاب ہے. کیونکہ آج کے پہلے بھی امت میں اس طرح سے عذاب آئے, اور عذاب کس وجہ سے آئے کہ گناہ جو انسان, اللہ نے جو جو چیزوں کو منع کیا ہے وہ چیزیں انسان کر رہا ہے اس وجہ سے. اور حضور نے یہ کہا تھا کہ میری امت پہ کبھی کوئی آگ کا عذاب مت لانا, کوئی ایسا عذاب مت لانا کہ جس کے وجہ سے امت میں آپس میں اتنی لڑائیاں پھیلے یا کوئی چیز پھیلے. تو اللہ نے کہا تھا ان کو کہ ٹھیک ہے میں اس طرح کا کوئی عذاب تمہارے اوپر مطلب تمہاری امت پہ نہیں لاؤں گا, آگ کا یا پانی کا, لیکن تمہاری قوم میں. اور یہ بھی کہا تھا کوئی باہر کی قوم آ کر ہماری امت کے اوپر حملہ وار نہ ہو یا کوئی چیز نہ ہو. یہ چیزیں اللہ سے انہوں نے مانگی تھی. لیکن اس میں جو فتنہ جو ڈالے تھے سب سے بڑا فتنہ ہے پیسے کا فتنہ. اور یہ کہا تھا کہ تمہاری امت میں آپس میں لڑ کے ہلاک ہو. تو آج جو ہو رہا ہے یہ دنیا میں سب سے پہلے یہ باتیں ہوئی ہیں کہ لوگ جو بیاض انٹرسٹ پیسہ کمانے کے لیے جو کرتے ہیں, یہ جو کرتے ہیں, اللہ نے فرمایا ہے کہ جو بیاض کا سود کا ویوہار کرتا ہے وہ کسی کا خون پیتا ہے, وہ قیامت کے دن خون کی ندی میں تیرے گا. خون کی ندی میں, کیونکہ ایک بار حضور کا گزر ہوا دوزخ کی طرف سے, تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ خون میں تیر رہے ہیں, خون پی رہے ہیں. تو بولے یہ لوگ کون ہیں؟ تو بولے جو لوگ بیاض سود کا دھندا کرتے ہیں. تو آج یہ عام ہو چکا ہے, لوگوں نے بزنس بنا لیا. تو اللہ نے فرمایا کہ جو سود اور بیاض کا دھندا کرے گا اس سے میری خود جنگ ہے, مطلب اس کی اللہ سے جنگ ہے. تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے تو وہ انسان بچ سکتا ہے؟ کبھی نہیں بچ سکتا. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ چیز عذاب کا ایک کارن. اور دوسری چیز یہ کہ جو مسلمان ہیں, آج ہم کہتے ہیں حضور کے امتی ہیں ہم لوگ, لیکن ہم کون سی ان کی سنت ادا کر رہے ہیں, کون سے ان کے راستوں پر چل رہے ہیں؟ آج ہر طرح سے دیکھا جائے نا تو ہر جگہ پہ ان کی حکم کی نافرمانی ہو رہی ہے. کلام پاک کی کس ارکان پہ ہم لوگ چل رہے ہیں؟ آج کون سا مسلمان ایک دم اس سے کہہ سکتا ہے کہ میں 5 ٹائم نماز پڑھتا ہی ہوں یا میں کلام پاک پورا جانتا ہوں؟ اگر ایک آیت پوچھی جائے, میں نے اس دن فیس بک پہ ڈالی تھی کہ کون سی ایسی سورہ ہے جو بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتی, صرف ایک کمنٹ مجھے آئی. ابھی یہ نہیں پتا کہ کلام پاک میں کتنی آیتیں ہیں, کتنے رکوع ہیں, اور کس آیت میں کیا بتایا گیا ہے. اللہ نے کلام پاک ایسے اوپر رکھنے کے لیے تو نہیں دیا کہ اس کو خالی آج کل قسم اٹھانے کے لیے میں کلام پاک کی قسم کھاؤں. اور کلام پاک کی قسم کھانا کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ نے فرمایا قسم صرف اللہ کی کھاؤ. اور وہ بھی کیوں کھائی گئی تھی قسم؟ پہلے سب سے پہلے قسم شیطان نے کھائی تھی اللہ نے. جب آدم السلام کو ان کو بتانا تھا, یہ بتانا تھا کہ یہ تم پھل کھا لو, اس سے تم فرشتے ہو جاؤ گے, تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی, یہ بتایا ٹھیک ہے کہ تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی. تو شیطان نے بہکایا تھا اللہ کی قسم کھا کے. تو اسے آدم علیہ السلام کو لگا تھا کوئی اللہ کی جھوٹی قسم تو کھائے گا نہیں, تو پہلی قسم اس نے کھائی. آج مسلمان ہر بات پر قسم کھاتا ہے, اور جو سب سے بڑا جھوٹا ہے وہ سب سے زیادہ قسم کھاتا ہے. ہاں, تو اسی لیے یہ ایک چیز عذاب کا جو باتیں شروع کر رہی ہوں میں, ایک ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ, چھوٹی چھوٹی, زیادہ وقت نہیں, لیکن یہ سمجھو کہ آج سب سے پہلا جو مسلمان اللہ نے جس چیز کے لیے جنگ فرمائی وہ دیکھو. کوئی انسان نے مدل پیسہ لیا, اس کا بیاض ہی بڑھتے بڑھتے انسان مر جاتا ہے, مدل کہاں دے پائے گا؟ نہیں دے پاتا نا. تو جو انسان کے دل سے آہ نکلتی ہے نا کوئی چیز کا بیاض دینے کے لیے, اللہ نے فرمایا کہ جو مدل پیسہ اس سے ایک پیسہ بھی لینا حرام ہے تمہارے لیے, تو وہ نہیں لینا. دوسری چیز, آج جو ہے لوط علیہ السلام کی قوم پر کیوں عذاب آیا؟ پتھر کا عذاب اللہ نے بھیجا تھا, کیونکہ وہ لوگ ہم جسم سے لوگ ساوت کرتے تھے. تو آج یہ چیز کتنی عام ہو گئی ہے, یہ ہو گیا ہے لیونگ میں رہنا ہے. زنا عام ہو چکا ہے, مسلمان بھی اس سے پرہیز نہیں کر رہے ہیں, زنا بالکل عام ہو چکا ہے. تو یہ ایک زنا کو عام کر دیا جہاں پہ یہ بتا گیا کہ غیر مرحم کی طرف پہلی نگاہ معاف ہے, دوسری نگاہ دیکھنا بھی گناہ ہے. تو آج تو ہر ایک کے ایک 2 3 الگ الگ حساب چل رہے ہیں. اور شادی سوچ لی ہے کہ حضور نے تو 11 شادیاں کی, لیکن حضور کی زندگی تم لوگوں نے دیکھی, ان کی زندگی تم لوگوں نے دیکھی, انہوں نے 11 شادیاں کیوں کی, کس وجہ سے کی؟ ان کی پہلی شادی حضرت خدیجہ سے جب ہوئی, وہ بھی 2 بار کی بیوہ تھی,
2 बार की विवाह, और उनकी उम्र 40 साल थी, हुजूर की उम्र 25 साल थी, और उन्होंने सामने से उनको पैगाम भेजा था शादी के लिए। हुजूर ने नहीं कहा था कि वो ताजिर हैं तो उसके लिए मैं उनके यहाँ करूंगा। उन्होंने उनके अमीन, उनका सब तौर तरीका देखकर वो उन्होंने खुद शादी के लिए उनके पास पैगाम भेजा, तब उन्होंने शादी कर। उनकी हयात में उन्होंने दूसरी शादी नहीं की, और वो उनके जब हुजूर 50 साल के हुए तब उनका इंतकाल हुआ। 25 साल उनके साथ रहे, या अमूमन यही कुछ इतना था, 25 या 54 साल ऐसे। उसके बाद उन्होंने और जितनी भी शादियां की इस्लाम के लिए, या इस तरह से कि अपना दीन फैले, और लोगों को जो मतलब तकलीफ में थी, ऐसी औरतें थी जिनको और कोई भी निकाह नहीं करता, उनसे उन्होंने निकाह किया। ऐसे नहीं निकाह किया कि अपनी तफरी या इस तरह से जो आज लोग 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं कर सकते। क्यों कर सकते, उसमें वजूहात है कि क्यों उस तरह से निकाह किया जाता है। तो ये बात लोगों को नहीं समझ में आती। बस हुजूर की अच्छी चीजें नहीं लेनी, जो चीज है और अल्लाह के करम से कि उनके अंदर तो कोई ऐसी, उधर रहमतुल लिल आलमीन थे, वो पूरी उम्मत के लिए रहमत बन के आए। मरते मरते भी वो उम्मत 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 करते रहे, और आज भी हमारे नबी जिंदा हैं। इसके वाकयात हैं कि आज भी वो जिंदा है। तो ये चीजें इंसान ने देखना चाहिए। और ये कहते हैं कि हजरत आयशा से जब उनका निकाह हुआ, हजरत आयशा से निकाह उन्होंने क्यों किया था? दीन के लिए किया, दीन के लिए उन्होंने निकाह किया हजरत आयशा से, इसलिए कि वो नॉलेज में इतनी तेज थी, नॉलेज में इतनी तेज थी, इसके वजह से नॉलेज में इतनी, मतलब उनका जहन इतना अच्छा था, इतनी हदीसें उन्होंने जो भी हुजूर के अल्फाज़ात बोली ना, हुजूर के जो कुछ भी बातें जो हुजूर बताते थे, वो हदीसें उनको बाय हार्ट थी। तो वो दिमाग की इतनी तेज थी, और आगे दीन को उनको फैलाना था, इसकी वजह से उन्होंने दीन के लिए उनसे शादी। तो हम हुजूर की जिंदगी को नहीं देखते। आज हम लोग रोजा जो रखते हैं, रोजा क्या खाली पेट भूखा रहने का नाम है? हाँ, सिर्फ भूखा रहने का, खाली भूखा रहने का नाम रोजा, सिर्फ भूखा रहे। रोजा पूरे जिस्म का होता है, निगाह का है, जबान का है, कान का है, नाक का है। न गलत चीज देखो, न गलत चीज जबान से निकालो, न सुनो, न कोई ऐसी एक्टिविटी करो कि जिससे हमारे रोजे में खलल हो। आज क्या इंसान सोचता है कि रोजा रखना है, बस भूखे रहेंगे तो रोजा हो गया। नमाज गायब, कलाम पाक पढ़ना गायब, या फालतूगिरी मजे से टीवी लगा के देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, बस किसी तरह टाइम पूरा करना। तो ये रोजा नहीं हुआ। रोजा है तो उसके साथ में तुम्हें उसके अरकान भी अदा करने, क्योंकि रोजा और नमाज, ज़कात, हज, तो 5 चीजें इस्लाम की हैं। वो चीजों पर इंसान अमल नहीं कर रहा। अभी हम कब्र में जब जाएंगे ना, जब हिसाब किताब होगा, तो सबसे पहले कलाम पाक और रोजा खड़ा होगा। उस वक्त वो शफाअत करेगा, कहेगा या अल्लाह, इसने तूने इसे हर चीज नेमत अदा की थी, लेकिन इसने तेरी रजा के लिए हर चीज से गुरेज किया, हर चीज से परहेज किया, हर हलाल चीज को अपने ऊपर हराम किया, तो तू इसकी शफाअत कर। और अल्लाह उसकी शफाअत मना नहीं करेगा। कलाम पाक कहेगा कि देखो अल्लाह पाक, मैं इसने रातों को जाग जाकर मेरी तिलावत की है, इसने पढ़ा है, उसको समझने की कोशिश की, उस पर अमल करने की कोशिश की है, तो अल्लाह इसकी तुम शफाअत कर दो, इसके गुनाहों को बख्श दो, तो अल्लाह उनके गुनाहों को बख्श देगा। और अल्लाह ने फरमाया रोजा, हर अमल जो इंसान करता है ना वो खुद के लिए, उसका अल्लाह मतलब उसके अपन नमाज पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, और भी नेकियां करते हैं, जो कुछ वो खुद के लिए, लेकिन रोजा अल्लाह ने फरमाया और रोजा अमल मेरे लिए, और उसका अजर मैं दूंगा। जो जिस चीज का अजर अल्लाह देने का वादा किया, तो उसका जो किस, अभी हम लोग किसी चीज को पूछ देंगे अपनी औकात के हिसाब से देंगे, लेकिन अल्लाह जब कोई चीज का अजर देगा तो किस हिसाब से देगा? तो अल्लाह ने हर चीज का अजर मुकर्रर किया है। और ये नहीं सोचने का कि ये बंदा इतना नेक है, इतना परेशान क्यों रहता है। देखो, अगर तुमको सोने की ईंट ला के देंगे, तुम गले में पहन सकते हो? नहीं पहन सकते। उसको पूरा आग में तपाया जाता है। तो जो नेक बंदे होते हैं ना, अल्लाह उसको उतनी ही मुसीबत में डालता है और उसको आजमाता है, उसके दर्जे बुलंद करता है। लोग बोलते हैं अरे इतना, जो अच्छे वही परेशान रहते। तो ये जो दुनिया है ना, ऐसी आंखें बंद करेंगे, खोलेंगे बस इतने देर के लिए, और आखिरत में हमेशा रहना है। वहाँ एक दिन की जिंदगी जो 50-50 हजार साल की हो, तो हमें यहाँ का नहीं सोचना है, हमें आखिरत का सोचना है। अरे ये कर लेते ना, क्या होता, इससे क्या होता, उससे क्या होता। मालूम है, अगर एक दाना तुम मुंह में डालोगे
और उसको जबान से थूकोगे उसका भी हिसाब होगा। तुमको पूछा जाएगा, तुमको जिंदगी दी, तुमने कैसे बसर की, हाँ, तुम्हें जवानी दी, कहाँ खर्च की, पैसा दिया, कहाँ खर्च किया, तुम्हें जबान दी, मतलब अल्लाह ने जो जो नेमत दी है उस हर एक एक चीज का हिसाब होगा। यहाँ तक कहा कि नहर के पास से गुजरो तब भी पानी को उस हिसाब से खर्च करोगे जैसे तुम्हारे पास थोड़ा पानी, क्योंकि पानी का भी हिसाब होगा। हम लोग ले थे हर चीज का हिसाब होगा। तो एक बात ये याद रखो कि हम मुसलमान हैं, ये कितना बड़ा अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने हमें दोज़ख की आग और हुजूर के उम्मती अल्हम्दुलिल्लाह सब बख्शे जाएंगे, लेकिन हिसाब किताब तो होगा। यहाँ तक फरमाया गया कि एक बंदे का कयामत दिन गुजर रहे थे, उसका हिसाब किताब हो रहा, तो हुजूर ने कहा ये मेरा उम्मती है, इसके हिसाब क्यों? बोले आपको पता है इसके ऊपर रमजान गुजरा और इसने रमजान का एहतराम नहीं किया। तो हुजूर ने फरमाया मैं ऐसे लोगों से बेजार हूँ जिसको रमजान आए और उसकी बख्शिश ना हो। तो इसमें क्योंकि हर नेकी का 70 गुना सवाब मिलता है, हर नेकी का 70 गुना सवाब है। तो हम लोग अगर हम लोग 2 रकात नमाज पढ़ते हैं तो उसका कितना हुआ? 1 रकात का 70 गुना, 70 गुना 14, 140। तो हम लोग इतना जब मल्टीप्लाई होके मिल रहा है और हर नमाज के बाद हम कज़ा उम्री पढ़ लें तो उसका 70 गुना तो हमारा हिसाब बराबर नहीं हो जाएगा। और कब्र में सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। हम नमाज गाए, रोजा रखते हैं, नमाज ही नहीं पढ़ते। तो अल्लाह को तुम्हारे भूख से कोई मतलब नहीं है। अल्लाह तुम्हारे लिए बख्शिश का जरिया। अब इसमें देखो रातें आएंगी, शबे कद्र पर भी है। ये 5 रातों में कहा गया ढूंढो, 5 रातों में 20वें रोजे के बाद से शबे कद्र कभी भी हो सकती है, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं, इस तरह से करके पूरी, मतलब कोई भी एक रात इसमें हो सकती। क्यों कहा गया? अगर एक रात बता देते हैं तो उसी रात को लोग इबादत करते हैं। इस बहाने कम से कम रोजा अल्लाह की रजा के लिए रखा जाता है कि अगर अल्लाह तुमको साल भर हर नेमत देता है, ठीक है, लेकिन अगर तुमको सब कुछ हासिल है फिर भी तुम क्यों छोड़ रहे हो? कि तुमको अल्लाह से कितनी मोहब्बत है। ये तुम्हें मोहब्बत अल्लाह की बताना। और हुजूर ने हमें कहा है कि हमें यहूदियों से थोड़ा अलग करके क्योंकि सहरी करने का मतलब बोलने जाऊंगी बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन किस तरह से है कि रोजा हमें अल्लाह की रजा के लिए रखना है। उसको ये जाहिर करना है कि अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तूने हमें हर चीज नेमत दी, लेकिन अगर तू जिस चीज से मना कर देगा हम उससे रुक जाएंगे। तो रुकना, रोजा का मतलब कोई चीज से अपने आप को रोक के रखना। हम चाहे तो हम कोई देख रहा है अकेले में भी खा पी सकते ना, लेकिन खौफ किसका है? खुदा का। अभी देखो हम लोग सीसीटीवी कैमरा लगे रहता, कहीं जाते तो तेरे कैमरा लगा, हरकत मत कर। लेकिन तुमको पता है किरामिन कातिबीन हर चीज को नोट कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे में आवाज नोट नहीं होती, लेकिन तुम दिल में भी क्या सोच रहे हो ना, वो भी फरिश्ते समझते हैं, वो भी फरिश्ते जान रहे हैं कि तुम्हारे दिलों के छुपे हुए भेदों को भी अल्लाह जानता है। बात समझ रहे हो? तो उसके लिए हमको अल्लाह का डर नहीं है। जो अल्लाह से डरेगा वो दुनिया से नहीं डरेगा, और जो दुनिया से डरेगा ना उसको दुनिया इतना डराएगी कि वो कभी उठ नहीं पाएगा। इसलिए हमेशा अल्लाह से डरो, तो दुनिया खुद बहुत तुम्हारे सामने झुक के आएगी। हम ये सोचते हैं दुनिया वाले, अरे ये देख रहा है, वो देख रहा है, वो देख रहा है, अरे ये क्यों नहीं सोचते कि अल्लाह हर वक्त हमें देख रहा है और उसके पास हमें जाना है, उसको मुंह दिखाना है, तो हम उसको क्या मुंह दिखाएंगे? आज कसम खुदा की, अगर अल्लाह कोई चीज से हमें रोक रहा है तो वो अपने फायदे के लिए। तुम रोजा रखो मत रखो, नमाज पढ़ो मत पढ़ो, उनको क्या? उनकी तो अल्लाह की तो मखलूक हर वक्त सजदे में, कोई रुकू में, हर तरह से 70,000 में पूरे फरिश्ते हर जगह सब जिन इन सब इबादत करे। उससे तुम्हारी इबादत की जरूरत नहीं है, तुम अपने लिए इबादत करो, क्योंकि ये आजमाइश कर रहे हैं, तुम्हें वहां पे जाना है। तो अल्लाह को मुंह दिखाना, इसलिए रोजा रखो। और ये रोजा क्यों रखा गया? तुम्हारी नेकियां 70 गुना बढ़े, तुम्हारे गुनाह कम हो। मालूम है हजारों हजार हर मतलब रोजा इफ्तारी के वक्त जहन्नम से छोड़ दिए जाते। आज कितने बड़े खुशनसीब है जो रमजान में इंतकाल जिनका होता है। तो ये बहुत नेक लोग हैं जो रमजान में इंतकाल फरमाते हैं। तो ये चीजें हैं जो कुछ चीजें, अभी देखो ये जो गुनाह आया, ये जो अजाब आया है, कहाँ गई साइंस, कहाँ गए वैक्सीन, कहाँ क्या गए? हाँ, अगर अल्लाह ने बता दिया कि हुकूमत सिर्फ मेरी है, बादशाहियत सिर्फ मेरी है, यहाँ लोग खुद को खुदा समझने लगे थे, दौलतमंद अपने आप को, बड़े बड़े दौलतमंद है तो कभी खत्म ही ना हो ना। जिस वक्त एक सांस तुम नहीं ले सकते, तुम्हारी पैदाइश की जगह, मौत की जगह किस वक्त में होता है कि सब मुकर्रर है वो मिले। और देखो रिस्क जो अल्लाह ने लिखा है तुमको हर हाल में मिलेगा। रिस्क इस तरह ढूंढता है जैसे मौत ढूंढती।
तो तुम रिस्क के तलिए मत भागो। अल्लाह ने कहा तुम मेरे तरफ भागो, रिस्क को तुम्हारे तरफ पीछे खुद ही दौड़ के आएगा। लेकिन आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, पैसा पैसा हाय पैसा, ठीक है, तो पैसे के लिए सिर्फ मर रहे। तो पैसा जो तुम्हारे तकदीर में लिखा हो तुमको मिलना ही, लेकिन तुम जो भाग रहे हो इसके पीछे और जो हराम का काम कर रहे हो उसकी वजह से तुम अपने लिए गुनाह का जरिया बना। अब ये देखो, जो ये कहा गया है कि ये मास्क लगाओ, ये करो, वो करो, ठीक है, इंसान ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ठीक है। अब इन लोगों ने क्या कर दिया कि मास्क लगा के रखो, मास्क लगा के रखेंगे तो अपने को पूरी तरह ऑक्सीजन मिलेगी नहीं। ये तो इस्लामी लिबास है, अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से रहना चाहिए। लेकिन ये जो चल रहा है सारे तरफ स्कैन जो चल रहा है, ये वैक्सीन लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो, ठीक है, लेकिन अगर हम फजर की नमाज पढ़ते हैं उसके बाद आयतल कुर्सी पढ़ेगा, जो हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ेगा, फजर के बाद पढ़ेगा, जोहर तक वो अल्लाह के अमान में रहेगा। 70,000 फरिश्ते उसकी हिफाजत करेंगे। घर से निकलते वक्त जो दुआ पढ़ के निकलेगा, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, मतलब पूरी तेरी मखलूक की शर से तू हमारी हिफाजत करना, तो कोई बीमारी होगी नहीं होगी। आयतल कुर्सी पढ़ के निकलेंगे, 70,000 फरिश्ते हिफाजत करते, कोई बीमारी होगी नहीं होगी। और पहली चीज, अल्लाह जिसे बीमार करना चाहेगा, जिसे मौत देना चाहेगा, मौत बढ़ा के उसी को आएगी, ठीक है। हिफाजत करना अपनी जगह है, लेकिन इंसान जो गुनाहों की तरफ जा रहा है, गुनाह में मुब्तला हो रहा है, इसके वजह से ये सारा अजाब है। और ये अल्लाह ने फरमाया कि तुम मेरी नाफरमानी करोगे तो तुमको ऐसा बादशाह मुतल्लक कर दूंगा कि तुम्हारे ऊपर इतना जालिम बादशाह आएगा कि तुम हर चीज से परेशान हो जाओ। और ये आज क्या हो रहा है, तो आज हमने दीन से दूर हो गए हैं, इसलिए इस तरह से अजाब में मुब्तला है। ये बात याद करके चलो। और पहली चीज, अगर जो दीन पे कायम रहेगा, 5 टाइम नमाज पढ़ेगा, इबादत करेगा, अल्लाह से डरेगा, तो उसे कोई भी मुसीबत कभी नहीं आएगी। और हाँ, जो मुसीबत आती है, आजमाइश होती है, वो अल्लाह की तरफ से है, और अल्लाह जितना पीछे खींचता है उतना आगे इंसान को ऐसे बढ़ाता है। और अल्लाह के राह में खर्च करने से कभी कम नहीं होता। अगर तुम, अल्लाह ने फरमाया तुम 1 कदम मेरे पास आओगे तो मैं 10 कदम तुम्हारे पास आऊंगी। और दूसरी चीज, अल्लाह की रहमत, हम दुरूद शरीफ नहीं पढ़ते क्यों? एक बार दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, अल्लाह की रहमत 10 बार हमारे ऊपर आए। दुरूद शरीफ नहीं पढ़ते, अल्लाह के बताए हुए रास्तों पर नहीं चलते। इसलिए इस रमजान में अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह हम सबको नमाज, रोजा, ज़कात, हज पर कायम होने की तौफीक